everyone, and welcome to an episode of Cricket after a very long break. I think हमारा जो last episode हुआ था, that was in July when West Indies were in England, and after that we took a very long break. हम बिल्कुल गायब ही हो गए, but now we've decided to have a program because it's very important. South Africa are in Pakistan after a gap of nearly 14 years, and I'm here as usual with my friends Zark and Uzair, और हम आज जो हैं इस सीरीज पे बात करेंगे जो दोनों टीमों के स्क्वाड्स हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल, एंड अदर देन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिसबा हु इज अंडर फायर. बेसिकली बड़ा प्रेशर है उन पे, and it seems the PCB officials, the top management, are not quite impressed with how the team has been performing under him. Hello Zair and hello Zark, welcome to the show. Hello Ashu, it's been a long time. It's been Hello guys, hope you're doing 7, well, 8 staying months. safe. Yep, जुलाई में हमने अपना लास्ट शो किया था. बिल्कुल. So But it's good to be back. It's good to be back, and I think हमें और shows करने चाहिए क्योंकि बिल्कुल, PSL is also coming ahead. we have a new chief selector now. And Yes, Mohammad Wasim is our new chief selector, and we've got a lot to discuss about his recent press conference जिसमें उन्होंने squad announce किया, and he's been called the laptop selector. तो इस पे भी हम आज बात करेंगे. What do you guys think? Should we begin with the squads or what? Let's start off with the squads. उसके बाद we'll move on to the next topic. वो उसी के related है मिसबा का. So let's start off with the squads. So we're going to begin with the squads. I'd like Uzair to go through the South African squad first, and then we're going to discuss the Pakistani squad. Sure. So South Africa, as we all know, It's on South the screen. Africa reached Pakistan today in the morning, and they're being led by Quinton de Kock. Then they have Tender Bavuma, Markram, Park Duplessis, experienced campaigner, Dean Elgar hai, Kagiso Rabada, Pretorius, Maharaj, Ngidi, Vander Dussen, a big player, Notje, he expressed pace, the X factor I would say in the South African lineup. Uske baad Mulder hai, uske baad we have Sepamla, Bjorn Hendricks, and Varen, uske baad Irvi, uske baad Keegan Peterson, Tabriz Shamsi, left arm leg spinner, uske baad Linde, uske baad Dupa Whelan and Jensen. We have a few new names in the lineup, in the squad. We have a few players who've gotten their maiden call-ups. I think Janssen has come as a replacement for a player who just got dropped from the squad due to some medical reason. True, exactly. Marco Janssen, I guess, है ना? Exactly. Last moment, 11th hour में. True, बिल्कुल. So I think he अच्छा must squad have है. replaced. अच्छा, he's playing. I was thinking Van Dusen मुझे नजर नहीं आया. Where is he? No, he's there वहाँ पे, and He's it's there. good to Yeah, see yeah. Rabada back. It's good to see Rabada back. True. He did I not know. feature in the series against Sri Lanka, so that has bolstered their bowling attack a little. South Africa ka. So overall, it's a decent squad, and They're they've going with their just full come fresh strength. off after beating Sri Lanka. Exactly. बिल्कुल, it's a very good squad that recently beat Sri Lanka. So now I think we should move on to the Pakistan squad, which is going to be the focus of our episode today. So And here is the Pakistan. Pakistan being led by Babar Azam. The openers for the Pakistan squad are Abid Ali, Abdullah Shafiq got his maiden call-up for the test squad. Uske baad we have Imran Butt, Azhar Ali, the experienced campaigner, Babar Azam, as I said, he's the captain. Fawad Alam performed well against New Zealand. Kamran Ghulam is there after a fantastic domestic season. So is Saud Shakir and Salman Ali Agha. In the all-rounders category, we have Fahim Ashraf and Mohammad Nawaz. Mohammad Nawaz make a comeback. Wicket keepers, we have Mohammad Rizwan and Sarfaraz Ahmed. In the spinners category, we have Noman Ali, the captain of the Northern team. Sajid Khan is there, maiden call-up, Yasir Shah. Fast bowlers, we have Haris Rauf, and we have Hassan Ali, we have Shaheen Shah Afridi, and we have Tabish Khan. So that's the squad for Pakistan team. The test squad, which will play against South Africa. The match is going to start on the 22nd of January. It's in Karachi, so we're hoping for a good match. It's a new squad, new players, 9 uncapped players named in the squad by the new chief selector. Domestic performers getting their reward of scoring big runs, taking wickets. Hassan Ali making a comeback, which will be for Pakistan. I lost connection for a while. Sorry for that.
I think this squad जो है हमारा पाकिस्तान का, it's too inexperienced. I think it's more of a popular squad. It's full of names that people wanted to hear, जिन्होंने कायद आज़म ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म किया. लेकिन इस स्क्वाड में मुझे डेप्थ ज़्यादा नजर नहीं आ रही, और जो बॉलिंग है और जो मिडिल ऑर्डर है काफ़ी लैकलस्टर मुझे लग रहा है इसमें. They might get away with it playing at home, लेकिन they're going to struggle anywhere else. बहुत से लोग कह रहे हैं कि we're already struggling outside home, लेकिन the purpose of making changes into a squad is कि आपकी टीम बेहतर परफॉर्म करे. I don't think this is a strong squad, although people have been rewarded for their performance in the first class circuit. But I don't think कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो एक टेस्ट ओपनर है. Like come on, उसका कोई first class experience as such नहीं है. इसके अलावा he's coming at the back of 2 ducks in New Zealand in T20 internationals, और सीधा इनको आपने टेस्ट में ओपनिंग दे दिया. And Abdullah Shafiq didn't even perform well for the Shaheens in New Zealand. Exactly. और इसके अलावा I think कामरान गुलाम is a good pick. उसको लेना ही था, उसका इतना impressive season था. बिल्कुल. और सऊद शकील, सलमान अली आगा भी ठीक हैं. Bowling में यार I would not have dropped Abbas at all, although he's not picking up wickets, but at least he provides control. What do you think, both of you? जद भाई आप बोल ही नहीं रहे आज. Okay, I'll start. मैंने कहा पहले आप लोग बात कर लें. मैं स्क्वाड ही देख रहा था, और देखें हमने पहले बात की मोहम्मद वसीम, he is also making his debut along with the 9 debutants. देखा जाए तो ठीक है जी, he's making his debut. और जिस तरह उन्होंने किया, उन्होंने अपनी सिलेक्शन दी, एक उन्होंने एक प्रोजेक्शन दी, एक बड़े नए अंदाज से सुना. इस बार बहुत ही नया अंदाज था उनकी सिलेक्शन का भी. उन्होंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की थी, प्रोज एंड कॉन्स बताए कि ये प्लेयर क्यों सेलेक्ट हुआ है, वो प्लेयर क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ. तो उन्होंने बड़े डिटेल तरीके से की. तो स्क्वाड देखे जी, उन्होंने कंप्लीटली स्क्वाड में ये तो 9 डेब्यूटेंट्स तो रखे, लेकिन उन्होंने, ठीक है आपने कहा रिस्क, आई कंप्लीटली एग्री, इट्स अ बिग रिस्क पिकिंग 9 डेब्यूटेंट्स और बाकी, लेकिन उन्होंने एक मैसेज मेरा ख्याल से इसमें दिया है. द मैसेज इज आई थिंक वेरी क्लियर फ्रॉम मोहम्मद वसीम कि इफ द बिग नेम्स, द बिग फेम्स, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, आई एम taking note of these players who are performing on domestic circuit, जो कि बेशक एक सीजन कर रहा है या पिछले 10 सीजन से कर रहे हैं. तो बट ही इज नाउ टेकिंग फुल नोट्स कि मेरिट पे कौन कौन परफॉर्म कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है. और अगर आपकी 2 से 3 सीरीज, अगर आपकी एटलीस्ट 2 सीरीज अगर आपको बुरी गई, तो आई थिंक मोहम्मद वसीम विल बी विलिंग टू टेक दिस रिस्क कि वो उस प्लेयर को ड्रॉप कर दे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी फॉर, मेरा पर्सनली फेवरेट था. मैं कई बार जैल से भी मेरी बात होती थी उसके बारे में, फास्ट बॉलर ताबिश खान. वेरी हैप्पी. ट्विटर पे भी काफी इसके बारे में लिखते रहे. मैंने उसके बारे में लिखा एंड आई वाज वेरी हैप्पी, एक्साइटेड कि चलो उसे फाइनली ही इज गेटिंग द चांस ही डिजर्व्ड. आई थिंक ये चांस उसे शायद 5 साल पहले मिल जाना चाहिए था, 5 से 6 साल पहले. और he's 36 now, I believe. He is 35, 36 exactly. हाँ, तो इस एज में तो making a debut at the age जुल्फिकार बाबर did. तो इस एज में चले जुल्फिकार बाबर, देखिए आपके पास एग्जांपल्स हैं, जुल्फिकार बाबर और सईद अजमल, कि इस एज के अराउंड उन्होंने भी डेब्यू करना शुरू किया था 32 33 पे, लेकिन दे वर स्पिनर्स. स्पिनर और फास्ट बॉलर की फिजिक में बहुत फर्क होता है. तो ताबिश खान को इस एज में लाना और खिलाना, आई थिंक इट्स अ वेरी ब्लंट कॉल मोहम्मद वसीम की तरफ से, और उन्होंने बहुत अच्छी कॉल मेरी तरफ से ली है. एटलीस्ट ही इज गिविंग अ सीरीज, और वो भी होम पे. ताबिश खान बहुत कॉन्फिडेंट होंगे कि उनको अपने होम पे खिलाया जा रहा है, वो अपने होम पे डेब्यू करेंगे, एंड ही विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि उनको वहां की पिचेस का अंदाजा भी होगा. अच्छा सर, डोंट यू थिंक इसकी जगह पे वकास मकसूद could have been a better prospect in place of ताबिश? यार देखिए, वकास मकसूद को भी आप लाएंगे तो फिर आप किसको और करेंगे ड्रॉप? आपने अपने बाकी तो सारे सीनियर्स को ड्रॉप कर दिए, और बहुत बड़ा रिस्क है. आपने लिटरली, आप अपनी बैटिंग डिपार्टमेंट देख लें, आपने अपनी बैटिंग डिपार्टमेंट की लिटरली पूरी शेप चेंज कर दी है डेब्यूटेंट्स के साथ. That's true. उसके अलावा आप अगर बॉलिंग में भी करेंगे तो ताबिश खान तो चलें ठीक है, शुक्र है. आई एम वेरी हैप्पी फॉर हसन अली एज वेल. कांग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर मेकिंग इट बैक टू द टीम. उन्होंने परफॉर्म किया. तो सिलेक्शन वाइज अगर हम देखा जाए तो 9 डेब्यूटेंट्स के साथ रिस्की है, मेरिट है, लेकिन आई थिंक इस मेरिट की परफॉर्मेंस और सिलेक्शन के अलावा आई थिंक इट्स अ मैसेज बेसिकली जो मेरा ख्याल से मोहम्मद वसीम ने दिया है कि यार देखो, आपने परफॉर्म किया, आपने नहीं किया, मैं आप लोगों को 2-3 सीरीज से देख रहा हूँ, you're not able to handle the pressure. For example, Shan Masood, he had I think one of the miserable series of his career, जो अभी he had a shocker.
he had a shocker, absolutely. सफर तो हर गौहर एक- ने एक इनिंग्स में उतने रन कर लिए थे जितने शान ने अपनी लास्ट 7 इनिंग्स में की थी since that century at Old Trafford in Manchester. Exactly. He's been all But- at sea, शान मसूद. हाँ मगर फिर भी देख- I देखो- think कि यार आप बोलें। सबका अपना अपना देखो टाइम था. आई थिंक मोहम्मद वसीम ने उनको चांस दिया जो कि डिजर्व करते थे पिछले 3-4 साल से, 5 साल से भी. और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो अभी जो कोच है हमारे पाकिस्तान टीम के, आई थिंक वो भी फेयरवेल उनको भी मिलने वाला है. तो काफी लोग तो उनका I think his time is काफी up. लोग तो आई थिंक काफी लोग तो बड़े खुश होंगे आई थिंक इस फेयरवेल से, कि शुक्र है कि फाइनली उनका टाइम भी आ गया, क्योंकि काफी अरसे से पहले टुक टुक पे उन्होंने टाइम गुजारा, तो उन्होंने टीम को भी टुक टुक पे लगा दिया जब से वो रिटायर हुए हैं. तो यार बहुत ज्यादा मुश्किल जेड सिचुएशन भाई आपकी बातें सुन के मुझे शोएब अख्तर याद आ रहे हैं. आपका जो जिससे आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो ना, बिल्कुल शोएब अख्तर स्टाइल में आप क्रिटिसिज्म आप कर रहे हो. लग रहा है आपने उनकी काफी देखा है YouTube पे शोएब अख्तर को फॉलो कर रहे हैं. आजकल वीडियो भी बड़ी वायरल हुई है. मैं सबको फॉलो करता हूँ, पाकिस्तान के जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आई रियली रिस्पेक्ट देम अ लॉट, आई फॉलो देम, और बड़े इत्मीनान से और बड़े एहतराम से मैं उनकी बातें सुनता हूँ. शोएब अख्तर इज आल्सो वन ऑफ दोस. ठीक है, उनकी बातें, कुछ बातें हार्श होती हैं, कुछ बातें वो कर लेते हैं, लेकिन उनकी मैं कुछ बातों से एग्री भी करूंगा कि फाइनली मिसबा वाज नॉट द काइंड ऑफ माइंडसेट वी नीडेड इन द टीम आफ्टर हिज रिटायरमेंट. टू बी ऑनेस्ट, वी नीडेड समथिंग कि यार आप जब नई टीम बनाते हो तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से बनाते हो. पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है कि यार वनडे खेल रहे हो, जाओ बैटिंग कर रहे हो, जाओ मारो स्कोर कार्ड पे 350 रन, Exactly. 300 प्लस रन मारो, बिल्कुल 350 मारो. आजकल तो 350 इज लाइक एन एवरेज स्कोर. आप देखो दुनिया कहां से कहां जा रही है. 350 मारी है, हम कहते हैं यार 260 270 मारी है. नाउ आवर बॉलर्स विल बी एबल टू डिफेंड दिस. हमारे पास इतने हैं. ट्रू. आई थिंक आप जितना थोड़ा प्रोग्रेस भी मिकी आर्थर के अंडर हमने किया, वो मिसबा के दौर में सारा ही अंडन हो गया. exactly. जो भी You whatever little cannot- progress he made again under मिकी आर्थर. यार आप अपने बॉलर्स को सुपर हीरोज नहीं बना सकते हर वक्त, कि यार कि वो हर वक्त आएंगे आपको विकेट लेके देंगे. शाहीन शाह अफरीदी इज हैविंग अ वेरी ड्रीम रन अभी इस वक्त, बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, लेकिन आपने उनका हाल अभी रिसेंटली पे आखिरी टेस्ट मैचेस में देख लिया. उनको क्या मसला फिटीग, और उसकी वजह से जब आप वन मैन आर्मी बन के चलेंगे, सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंडेबल होके चलेंगे, तो यही होना है. आपको मौके का फायदा उठाना है, आपने माइंडसेट के साथ जाना है. आई एम श्योर मिसबा यही कहते होंगे कि बैट्समैन जाते होंगे पिच पे, मिसबा कहते होंगे कि यार जाओ आराम से खेलो, खैर से खेलो, अपना टाइम लो. यही तो मसला है. योर डिफेंस कैन समटाइम्स बिकम योर बिगेस्ट वीकनेस. इट कैन बिकम योर बिगेस्ट वीकनेस. तो आप जाके जिस तरह आप देखें माइंडसेट, न्यूजीलैंड की माइंडसेट आप देखें किस तरह खेल रही है वो. दैट माइंडसेट जो है दैट स्टार्टेड फ्रॉम ब्रेंडन मैकलम, अगर आपको याद हो. बिल्कुल. तो बस बात ये है कि McCullum ठीक है आपकी when ये he was सिलेक्शन captain. है. आई जस्ट होप ये जो सिलेक्शन हुई है, ठीक है, हम जीत जाएंगे. पाकिस्तान सॉइल पे अल्लाह करे हम जीते. आई होप कोई हमारा वो रन ना जाए, लूजिंग स्ट्रीक हमारी एंड हो जाए यहीं, एक अच्छी हम पॉजिटिव नोट पे शुरू करें. लेकिन मैं चाहता हूं यहाँ एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए. बाबर आजम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक लीड करे इस टीम को. एंड आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट. कि चेंजेस भी कुछ आएंगे मैनेजमेंट. बाय द वे देयर इज अनदर चेंज एज वेल कि मिसबा हैज बीन एक्सक्लूडेड, और उसके पावर्स उससे ले लिए गए फ्रॉम पिकिंग द प्लेइंग 11. ट्रू. बाबर आजम को कहा है कि आप अपनी प्लेइंग 11 खुद बनाएं. हां, Uzair, what do you think? बाबर हैज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. तो आई Yep, वुड लाइक Uzair टू himself. We have been talking about Qabil Khan. We've been talking. Babar should go for it. Because we've talking about all the players, but one surprise for me is, and one player that I'm scared that he might lose his pace now as well, is Haris Rauf. We saw how Naseem Shah lost his pace, bowling at 145 plus consistently, और हमने उसे raw pace, raw talent का, और अब we saw his pace drop down to 135, 136 consistently. That was a big let off, I would say, for me, क्योंकि a 19-year-old उस पे इतना ज्यादा लोड आप लोगों ने एकदम से लाए हैं. Uzair, sorry to cut you. आप हारिस रऊफ का, I am also concerned about शाहीन शाह अफरीदी as well यार. शाहीन शाह जिस तरह के उसको उस पे कितना workload वर्कलोड दिया जा डालेंगे रहा है, शाहीन शाह I am पे? very much worried for him as well. बिल्कुल आप इसको अगला मोहम्मद आमिर ना बना हर दें कि फॉर्मेट में वो खेल रहा है. बिल्कुल. We have to keep this in mind that the World मोहम्मद Cup. आमिर Uzair का And I tell you what, भी है. यार I tell you what, ये अभी अब्बास को जो हमने ड्रॉप किया है,
इससे शाहीन पे प्रेशर और डलेगा बिल्कुल बिकॉज तो सब ये पे आई थिंक सब एक पे टैक्टिकली अब्बास का स्ट्रेटेजिकली गलत मूव था. अब अशरफ I know आई होप Abbas आई is एम not रॉन्ग bowling well. I know he's not picking up wickets. मगर अब्बास इस आपने परफॉर्मेंस के अब बाद आई शाहिन एम शाह जस्ट is स्केयर्ड what 20 years old? आई एम जस्ट स्केयर्ड कि इस परफॉर्मेंस के बाद अब्बास की भी ये लास्ट सीरीज ना हो जो इसको ड्रॉप कर दिया है फॉर अनदर Sir, 1.5 year. हाँ बिल्कुल अब्बास को लेकर उन्होंने ड्रॉप कर दिया. नाउ शाहीन इज what 20 और ये आपके पेस अटैक को अब स्पेयर हेड कर रहा है. तो इस पे और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है. बिल्कुल. एंड ऑल्दो इस पे इतना ज्यादा वर्कलोड है, हर फॉर्मेट की खेल रहा है, फ्रेंचाइज लीग्स ये खेल रहा है. तो आई थिंक हमें इनका जो वर्कलोड है उसको Plus, प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहिए. एंड अब्बास शुड हैव बीन देयर इन द स्क्वाड एज अ बिल्कुल. सीनियर फिगर. Bilkul, with the World Cup coming up, we have to manage the workloads. We have PSL coming up as well. Uske baad we'll have other series coming up. We have to go to England in the summers. Shaheen Shah will be the spearhead of the We pace also attack have to then go as to well. South Africa in April. Exactly. तो आप देखें अब हारिस रऊफ तो हमारे उज़ैर, पास T20 अब मेरा specialist क्वेश्चन ये bowler है हैं. उज़ैर, तो माय क्वेश्चन उज़ैर टू यू इज कि हारिस रऊफ शाहीन के साथ कौन है हमारा बैकअप फास्ट बॉलर देखिए किस पर rely हारिस कर रऊफ सकते को हैं? टेस्ट में लाने का आपका इस वक्त कोई तुक नहीं बनती थी. आई डिडंट अंडरस्टैंड ऑन व्हाट बेसिस हैज ही बीन पिक्ड. True. हैज ही बीन पिक्ड कि उसकी 150 पेस है तो ही वो पेस इज पेस जैसे ट्विटर पे हम कहते हैं पेस इज पेस. अब अगर हाँ. उस बेसिस पे अगर इन्होंने पिक किया है तो नसीम शाह को भी उसी पेस पे पिक किया था. हारिस रऊफ हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन T20 cricket for the past 1 year since the time he has made his debut. I would say he's been picking up wickets for Pakistan regularly, and now what I fear is with the World Cup coming up, इसको टेस्ट में भी हम लोग ले आए हैं, वनडे भी ला रहे हैं. इसी तरह जैसे शाहीन शाह को फटीक और उसकी वजह से परफॉर्मेंस इसको भी हम खराब ना कर ले. इनको भी हम खराब ना करें. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. अब उसके लेकिन बाद आई एम हैप्पी we No, I हसन agree अली with को you. सपोर्ट हाँ. मिल रही है उज़ैर. बिल्कुल बिल्कुल. बट उसके बाद if we talk about Tabish Khan, Tabish Khan Hassan I had a would brilliant कैंपेनर दिखाई as a ताबिश trophy खान यार. और And I शाहीन think शाह his side अफरीदी के deserved है. to win. End में. Tabish Khan, I would say it's बिल्कुल. But yes, uh, उज़ैर carry on. we are 5-6 years late. I'm sorry to say Tabish Khan के squad में inclusion के लिए. हाँ. He's what 36. He doesn't really have a future. I would have gone with Waqas Maqsood. I think Tabish Khan ये इसलिए लाए हैं so that Mohammad Wasim had to show people कि अच्छा जी जो पहले deserve करते थे मैं उनको अब लाऊंगा. But that doesn't make sense. That's not long-term planning. Sorry to say about that. I'm sure merit पे उनकी selection हुई है, सब कुछ हुआ है, but Waqas Maqsood has been picking up wickets with the new ball, and Pakistan cricket team has been unable to do that. And he's young और उसके आप average check करें. बिल्कुल अब्बास को टैकल लोगों ने किया, टीम ने किया, लेकिन अब हमें अब्बास अब जैसे वो मोहम्मद वसीम used a term horses for courses, right? I think ये ऐसा ही term use किया था. ठीक हो गया. अब अगर उन लोगों को उसी टाइप का बॉलर चाहिए था who picks up wickets early on, Waqas Maqsood was the one. He was swinging the ball in the Quaid-e-Azam Trophy. He's been picking up wickets up front with the new ball. उसके बाद हसन अली आके wickets लेते थे Central के लिए, and that's how Central Punjab started winning matches. So what's the point of bringing in the 36-year-old for the first time in the squad when we all know that his career would be of 2-3 years maximum? Maximum 2-3 years. So I think we all agree कि squad, although it's good in a way कि it's given chances to those from the first class circuit, लेकिन on a whole इसमें long term factors नहीं consider किए गए, and it's basically a popular squad जो आवाम नाम सुनना चाहती थी हमारी बिल्कुल social media पे उनको उनके favorite players मिल गए. Unfortunately, enough. भाई आप बोलें फिर हम आगे topic पे जाते हैं. Unfortunately हम इन अब बहुत से ऐसे नाम पहले जो आए हैं और अब जो इन स्क्वाड में भी हैं, मुझे डेफिनेटली 100% श्योर हूं, अल्लाह करे मैं गलत हूं, हम बहुत से नाम जाया करने वाले हैं इसके बाद भी, बहुत सा टैलेंट जाया करने वाले हैं. जैसे जफर गौहर को एक मैच खिला के उन्होंने ड्रॉप कर दिया और उसका डेब्यू भी ऐसी जगह पे कराया एट क्राइस्टचर्च where the conditions were favorable for fast bowling, और न्यूजीलैंड का जो एक स्पिनर था रेगुलर मिच सैंटनर, उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया, हमने जफर गौहर को खिलाया. And after just one bad game, we are dropping him. That's how we are ruining careers here.
I think we need to जरा भाई जरा आप बोल लें, आप then लोग we need to बिल्कुल move on to the next topic. बिल्कुल we are talking about all the other players but we're not talking about Numan Ali who's 34 years old और उनका भी debut possibly हो सकता है. Why has Zafar Gohar been dropped who's a youngster और 34-year-old जिनका वही करियर कितने 3-4 साल चलेगा 5 साल चल जाएगा. So that's not long-term planning and that's True. not issues being fixed. ये सब ये आपके I लिए think ये changes आपके लिए बहुत short-term changes हैं. देखो आप चेंज करो आप भी लेकिन जब आप भी आते हैं टीम इस तरह वैसे भी लगी आप तो अगले साल की वर्ल्ड कप देख के कि यार अब अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है हमने अगला वर्ल्ड कप जीतना है ठीक है अब अगले वर्ल्ड कप को आप कैसे जीतोगे आप नया टैलेंट को स्टार्ट करोगे उसको ग्रूमिंग करना शुरू करोगे इस 4 साल में और उसको ग्रूम करके आप एक फॉर्मिडेबल टीम बनाओगे आप एक स्क्वाड 14-15 का स्क्वाड एक अच्छा बनाओगे आप इस स्क्वाड में आप किसको रखोगे आप ताबिश खान जब होगा तो 37-38 साल का वो हो जाएगा आप वो नुमान को आप करोगे वो ऊपर से आपका 34-35 का वो हो जाएगा तो आप इनको लेकर नहीं जा सकते ना तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन सेलेक्टिंग योर स्क्वाड तो उसके अलावा चले आई एम हैप्पी के बाकी हमारे पास इधर ऐसे एक एक्सपीरियंस आया स्पेशली वी शुड नॉट फॉरगेट हसन अली एज अशर मेंशन उन्होंने अपने डोमेस्टिकली जो उसकी इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस थी एक काइंड ऑफ उन्होंने एक कैप्टन एक टेकिंग लीडरशिप टू अनदर लेवल एक जबरदस्त अपनी टीम को उन्होंने एक डोमेस्टिक चैंपियन बनाया और एक शो लीडरशिप क्वालिटी शो की विच इज अ वेरी गुड साइन क्योंकि हम बाकी कंट्रीज में देखते हैं कि दूसरे कंट्रीज में भी लोग एक बैकअप लीडर ढूंढते हैं कि यार अगर ये इंजर्ड हो गया जैसे कोहली इंजर्ड हो गया कोहली के पीछे बैकअप रोहित शर्मा रखा हुआ है वहां आपके पास वार्नर्स है स्मिथ्स है इनका बैकअप है तो पाकिस्तान के पास जरूरी है कि इस तरह के बैकअप्स हो तो आई एम वेरी हैप्पी कि रिजवान ने जिस तरह परफॉर्म किया न्यूजीलैंड में ही इज ट्राइंग टू बिकम अ गुड लीडर एक उसके पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उससे तो बाबर के लिए एक ये साइन है कि देखो भाई आपने एक लीडरशिप क्वालिटी दिखानी है अदरवाइज वी हैव समवन इन द लाइक्स ऑफ मोहम्मद रिजवान के वो एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी दिखा सकता है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उसके साथ हसन अली ने भी वो क्वालिटी शो करना शुरू की All right, guys. I think we need to wrap it up. लेकिन we have more issues to discuss as well. तो squad को हमने काफी discuss कर लिया यहाँ पे, and I think we all agree कि इसमें कुछ अच्छे नाम है और कुछ जो है वो शायद नहीं होने चाहिए था necessary थे. Too many changes, in that matter. Now let's discuss मिसबा a little और फिर हम आपसे predictions लेंगे. हम आपस में predictions share करेंगे कि इस series में क्या होने वाला है. Now let's come to Misbah. मैं बोल रहा हूँ तो I think मैं ही carry on करता हूँ. I think personally I think ever since Misbah has taken over, Pakistan cricket has gone through a terrible run of form. और वही ज़ैक भाई वाली बात ये है कि हमारी performance जो है बुरी वो तो है ही है लेकिन जो aggression थी वो भी बिल्कुल हमारी खत्म हो गई है. अभी selection committee की जो meeting हुई है उसमें they've given Misbah another series to face जो South Africa वाली and they said कि आपकी performance will be reviewed again after that. There are reports as well that this series is going to be Misbah's last और उसके बाद PCB is in contact with Gary Kirshner and Andy Fry is going to take over. We'll have a foreign coach. लेकिन I also think कि इस तरह ये series Misbah को देख के they've also provided him a lifeline of sorts because South Africa coming to Pakistan after 14 years is big in itself. Other than that, Pakistan do not do very well against South Africa in Test cricket. We've only won दफा जीते हैं साउथ अफ्रीका से तो इफ पाकिस्तान अगर जीत जाता है तो मिसबा कहेगा देखिए जी मैंने आपको साउथ अफ्रीका को हरा के दिखा दिया सो दैट कैन टर्न टू बी दैट कैन प्रूव टू बी अ लाइफलाइन ऑफ सॉर्ट्स फॉर मिसबा और फिर मिसबा लंबा ही ना चिपक जाए हमारी टीम के साथ बिकॉज विद द वर्ल्ड कप कमिंग अहेड आई थिंक दैट वोंट बी अ वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान मैं ये नहीं कह रहा कि आई वांट पाकिस्तान टू लूज बट आई थिंक बाय अलाउइंग मिसबा पीसीबी हैज गिवन हिम अ लाइफलाइन और मेरे ख्याल में अच्छा डिसीजन ये होता कि आप यूनुस खान को इंटरिम कोच बनाते सीरीज के लिए मिसबा को आप सैक कर देते मिसबा और वगार दोनों को और इस सीरीज के बाद कोई यूनुस खान इंटरिम कोच होता और उसके बाद आप किसी भी फॉरेन कोच को लगा देते व्हाट डू यू थिंक I'll keep it short and simple. A good captain can. So, It's not a देखिए point अब that जहाँ a तक good बात है captain can be a good coach. ओके लेट्स as स्टार्ट well. विद उजैर क्योंकि मेरे पास काफी मिसबा के बारे में बात करना है तो लेकिन
So I'll keep it short and simple. It's not important that a good captain will always be a good coach. So he's been disappointing to say the least, and I think this is probably his last series, and we will probably see a foreign coach taking over from Misbah for the next series after the PSL. That is, Even if you win, you think he's out? he's out. He's out because जो मेहनत Mickey Arthur ने Out? की थी, that's been nullified since the time Misbah came in. That that's been nullified. तो प्रोग्रेस जो हो रही थी वो पीक बैकवर्ड हो गई है हमारा अब सारा. So that needs to change. And with that being said, I think this will be the end of Misbah, and we'll see a new head coach coming in and taking over after the PSL. Zach bhai, what do you say? जी मिसबा ने सबसे पहले तो चले उसका फेयरवेल आ रहा है वंडरफुल, लेकिन उसने जब संभाला टीम ने, आप अगर पीछे जाते हैं अपने आप को लेके, तो क्या उनकी अचीवमेंट बेसिकली है क्या? हाँ, what was his qualification? Nothing. लगे उनके काम एग्जैक्टली, तो क्वालिफिकेशन आपने क्या की है? अब देखा मैं नाम बड़े जो उन्होंने कहा कि यार मिसबा को भी शायद डेकेड ऑफ डेकेड अब याद आता है एक अचीव बड़ी प्राउडली कह सकता हूँ कि हमारा एक क्राइसिस आ गया था मैच फिक्सिंग के बाद, आमिर आसिफ की उसके बाद कि सलमान बट के बाद कि मिसबा ने टीम को संभाला. आई गिव फुल क्रेडिट टू हिम कि उसने एक टीम में डिसिप्लिन लाया उसके बाद कि उसके बाद कोई थैंक गॉड के अल्लाह का शुक्र है हमारा क्राइसिस नहीं पड़ा. बट वाइज क्या है, उन्होंने हमें चलिए न्यूजीलैंड में सीरीज जिताई, इंग्लैंड में एक सीरीज हमें उन्होंने टाई करवाई, उसके अलावा एज सच उनकी अपनी परफॉर्मेंस एक माइंडसेट बिल्कुल टुक टुक वाला बन गया था. नाउ आई टोल्ड यू अर्लियर बिफोर एज वेल कि उस माइंडसेट क्या होता है, पॉजिटिव अप्रोच होती है, वो मिसबा ने कंप्लीटली खत्म कर दिया था. स्पेशली उसके बाद आप नाम देखें, आपके पास जो नाम आ रहे हैं कि मिसबा के सिलेक्ट के होते हुए कितने नाम ऐसे हैं जो वॉलंटरीली कह रहे हैं कि हमें सिलेक्शन नहीं की, हमारी सिलेक्शन नहीं हो रही, वी आर गोइंग आउट ऑफ पाकिस्तान टू प्ले क्रिकेट. इधर कितने नाम आपके सामने आ रहे हैं, आपके पास ऐसे कितने नाम आए हैं जो एक टैलेंटेड प्लेयर्स पीएसएल से निकल के आए हैं और उनको आपने आगे खिलाया और उनको एकदम से गायब कर दिया, उनका अब नामो निशान भी नहीं है. सबसे बिगेस्ट इस वक्त क्राइसिस चल रही है आपके सामने मोहम्मद आमिर के सामने, वंडरफुल गाय विद वंडरफुल टैलेंट, एंड उसका एक वेस्ट किया गया, उसके साथ एक क्राइसिस हो रहा है, वो छोड़ के चला गया क्रिकेट. उसके अलावा आपके पास जुनैद खान, वन ऑफ द वेरी अंडररेटेड बॉलर्स हमारा पाकिस्तान का, जो कि सबसे बेहतरीन बॉलिंग कराता था. अब उसकी इकॉनमी उठा के देखें कितना बेहतरीन बॉलर था. उसके अलावा आप अब देखें अब्दुल्ला शफीक का, he should be मेरिट में मनी आ रही नाम आया और एकदम से उसका बुरा टाइम शुरू हो गया क्योंकि शुरू हो गया. अब उसको भी डर होगा अपनी मैंने परफॉर्मेंस कंसीडर करनी है. उसके बाद एहसान अली, आपको याद हो उजैर एहसान अली एक आए थे, बिल्कुल. हाँ, उनका T20 में नाम भी नहीं है, उनकी तो परफॉर्मेंस अब ऐसी हो गई है. उनकी परफॉर्मेंस ऐसी होगी कि वो तो अब पीएसएल से भी बाय बाय टाटा हो गए. उनका कुछ समझ नहीं आ रही है कि क्या सिलेक्शन हो रही है क्या नहीं हो रही है. तो इस वक्त हमारी टीम हमारा बोर्ड, हमारी मैनेजमेंट एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है. एंड आई होप कि ये जल्दी से क्लीन हो जाए और जल्दी से एक रिवैम्प हो और एक जबरदस्त सा एक टीम मैनेजमेंट आए और इसको एक अच्छी तरह से असेस किया जाए, सिचुएशन को मारे और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ किया जाए. गैरी कर्स्टन या एंडी फ्लार का नाम आ रहा है. बिल्कुल. But that's another discussion, I think, for another day. Andy Flower, they are very. दोनों की आए. This management needs to be changed. This coach needs to be changed, and Absolutely. this system needs to be changed. Misbah needs to and go. I hope they change it Misbah in a needs to positive go. way.
टोटली ये जो 9 चेंजेस किए अगर इसकी जगह एक मिसबाह Sir, को चेंज कर लेते ना he has to go. और उसकी जगह हाफ जाए चेंजेस तो- आप करते टीम में 5 कर तो अच्छा हो जाता हाँ। मिसबाह needs to go. I think we all agree on that. Squad में हमारे नहीं थोड़े सर अभी disagreements भी हो ना सकते जाए हैं, but तो we agree. कब जाएंगे? I'm sure. True. Misbah needs to go. Okay, so now let's wrap up our show with अभी भी ना गए predictions. तो I'm sure जो बाकी क्रिकेटर्स भी अमेरिका या यूके भाग देंगे. Good point. Good point. So let's wrap up our show with predictions. T20 सीरीज की तो बाद में हम कर लेंगे उस पे शो. अभी टेस्ट सीरीज आई 26th of January से पहला टेस्ट कराची में, second test is Rawalpindi. So let's now take predictions for the test series. I think I'll start first. I'll go first. I think Pakistan is going to win 2-0. Although our squad is young और कुछ नए faces हैं, लेकिन I think we'll win at home. We're too good for South Africa. I think we're going to win 2-0. What do you think, Hussain? And then finally, Zed bhai, aap bata dein. 2-0 to Pakistan. Player of the series would be Babar Azam. Yeah, looking forward to seeing him bat actually. True. New Zealand में It's नहीं a देखा 2-match हमने. series, right? Yep. It's a 2-match series. Karachi and Rawalpindi. Yeah. Okay. So what do you think, Zed? Okay, I think Who's winning this? I won't underrate South Africa. वो यहाँ खेलने आई है proper और अपनी अच्छा squad लेके आई है. I think it's going to be a nervy cricket series, or I think 1-0 to Pakistan. And I am looking very much to this battle, Rabada versus Babar Azam. I think it's going to be That's going to be a great fascinating battle. contest. Oh yes. Yeah. Totally. So I think to wrap it up. Thank you, Zed and Ed, for this little discussion. We apologize to our viewers कि हमारी इंटरनेट पे थोड़ी distortion हुई थी, so भी अगर ऐसी मसला हो तो we apologize for that. And we're going to have more episodes soon. PSL is coming up और T20 series भी जब होगी पाकिस्तान South Africa की, we'll try to come up and be here with you all. Until then, take care And of Ashu, yourself. we need COVID to is still there. And हाँ जी. We need to जी सर भाई. अरसे से हम आए नहीं हैं और फिर भी हम माशाल्लाह हमें हमारे पेज को लाइक किया जा रहा है, क्रिकेट को अच्छा रिस्पांस मिलता जा रहा है, तो इट मींस कि वो हमें देखना चाहते हैं. Oh yes, Facebook पे तो हम उनको ज्यादा रोजाना मैं देख रहा था. हाँ बिल्कुल. YouTube पे तो हमारे सब्सक्राइबर्स थोड़े रुक गए हैं, लेकिन Facebook पे आ रहे हैं. तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and give us your feedback. Once again, जो distortion हुई उसके लिए we apologize, and hopefully we'll be back soon with another episode, and we'll try to be more active on our Facebook page as well as on YouTube. Take good care of yourself. COVID is still there. Wear a mask, observe social distancing, or Allah Hafiz, see you soon. Goodbye everyone. Take care. Goodbye, everyone. Thank you all. Thank you. Bye.